یہ یاد رکھیے گا کہ خواب اور رویا ایک مسیحی کی زندگی میں بہت معنی رکھتے ہیں۔ اگر خواب کی اہمیت نہ ہوتی تو بائبل میں کسی کو خواب نہ آتے یا اس کا ذکر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے یہ کچھ خاص ہے جو بائبل میں بار بار خواب کا ذکر کیا گیا ہے یا خواب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ نے کبھی بھی یہ دعا نہیں کرنی کہ خداوند مجھے خواب آئے، بلکہ آپ نے یہ دعا کرنی کہ خداوند جو مجھے خواب آئے وہ مجھے یاد رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے خواب رویا میں بات کرے تو آپ ہمیشہ رات کو اپنی پرسنل پریئر کے بعد جب آپ اپنے بستر پہ جائیں تو لیٹ کر بھی آپ غیر زبان میں دعا کرتے ہوئے سنیں۔ میں آپ سے 100% شور کہتا ہوں آپ کے کان خدا کھولے گا اور آپ کی روحانی آنکھیں کھولے گا اور آپ کو ہیونلی ڈرینگز آئے۔ یہ میری بات بڑے غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہر خواب خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں پاسٹر جی ہمیں غلط خواب آتے، اور میں آپ کو بتانے ہی چاہتا ہوں وہ صرف خواب نہیں ہوتے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے خوابوں میں غلط ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ خواب نہیں ہوتے، شیطان ریئل میں کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری باڈی کے اوپر نشان ہے۔ کہاں سے آگے نشان؟ کون سی ایسی کبڈی کھیلی تھی آپ نے سوتے ہوئے جو آپ کی صبح سوتے سوتے نشان آ گئے؟ شیطان بو کر گیا ہے بہت کچھ، اور آپ کو لگ رہا ہے خواب ہے۔ اگر یوسف بھی کہتا خواب ہے، خدا اسے کہہ رہا ہے کہ جا لڑکے کو لے، اس کی ماں کو لے اور مصر کو چلا، وہ کہتا چھڈو پرا خواب ہے، یسوع مسیح کو بچپن میں ہی مار دے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کا جو سرمن ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے مائی ڈریم ورلڈ۔ آج جو خواب ہے، میرے خوابوں کی دنیا، کہ بائبل کے مطابق ڈریمز کی کیا اہمیت ہے، یہاں ایک مسیحی کی زندگی میں خواب کیا معنی رکھتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے آج سے آپ کے ڈریم چینج ہوں گے یسوع مسیح کے نام سے۔ آج سے آپ جو ڈریم دیکھو گے وہ یوسف کی طرح دیکھو گے یسوع مسیح کے نام سے، اور وہ پورے ہوں گے یسوع مسیح کے نام سے۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جی۔ ایوب 33 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت۔ کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے، بائبل کہتی ہے کہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ دو بار بولتا ہے۔ خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے، خواب میں رات کی رویا میں جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے۔ آمین۔ یہاں بائبل میں لکھا ہے کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ دو بار بولتا ہے، خواہ انسان اس کا خیال کرے نہ کرے۔ خواب میں رات کی رویا میں، خواب میں اور رات کی رویا میں جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے۔ آمین۔ اب بائبل بند کرو اور اپنے کان کھول دو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آج چرچ میں سیریس کہہ رہا ہوں، آج کچھ ادبھت ہی ہوگا یسوع مسیح کے نام سے۔ ہاللیلویہ۔ تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ دو بار بولتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کے بعد لکھا ہے خدا اس کے بعد خواب اور رویا میں بات کرتا ہے۔ خواب اور رویا میں بات کرتا ہے۔ جو خواب ہیں، خواب اور رویا ایک روحانی زبان ہے جس میں خدا آپ سے بات کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تاکہ خدا آپ سے بات کر سکے، اور کئی بار لوگ اسے بڑا معمولی لے لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ خواب اور رویا ایک مسیحی کی زندگی میں بہت معنی رکھتے ہیں، تاکہ خدا آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہے آپ اسے ریسیو کر سکیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ بائبل میں خواب کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ آج ہم دونوں پہلو سے بات کریں گے، نئے عہد نامے سے بھی اور پرانے عہد نامے سے بھی، کیونکہ زیادہ تر جب بات کی جاتی ہے تو لوگ ہدیوں کی بات ہو، ٹائد کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں اے تو پرانے عہد نامے نکال لیں۔ ہاں، تو اسی طرح جب ہم خوابوں کی بات کریں گے تو دانیل نے خواب دیکھا، ہاں، یوسف نے جو یعقوب کا بیٹا تھا، ہاں، اس نے خواب دیکھا، دانیل نے دیکھا، سلیمان نے دیکھا، تو لوگ کہیں گے یہ تو پرانے عہد نامے کی بات۔ مگر آج خواب بہت معنی رکھتے ہیں، اس کا آج ہم ڈیپلی اسٹڈی کریں گے، اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں یہ ٹیچنگ اتنی گہری ہے کہ یہ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں پریچ نہیں کی جائے گی، مگر میں کوشش کروں گا آج اس کی چند چیزیں میں آپ کو سکھاؤں، اور میرا ایمان ہے روح القدس آپ کو اور گہرے میں لے کے جائے گا۔ آمین۔ بائبل میں خواب کی جو ہے خاص ایک اہمیت ہے۔ اگر
ख्वाब की अहमियत ना होती तो बाइबल में किसी को ख्वाब ना आते या उसका जिक्र ना होता। इसका मतलब है ये कुछ खास है जो बाइबल में बार बार ख्वाब का जिक्र किया गया है या ख्वाब के बारे में बताया गया है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि दानियल ने ख्वाब देखा, हाँ, यूसुफ ने देखा जो याकूब का बेटा था, दानियल ने देखा, और उसके बाद हमें सुलेमान का मिलता है कि जो सुलेमान था उसने ख्वाब में खुदा से बरकत हासिल की। खुदा उसके ख्वाब में आकर उसे कहता है मांग, मुझसे क्या मांगता है। हालेलुया। तो कई लोग कहते हैं कि हम रात को सोते नहीं बल्कि पूरी रात दुआ करते हैं। हाँ, कई जो ज्यादा स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते ना तो वो ज्यादा ही कुछ आगे स्टेप निकल जाते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं हम पूरी रात सोते ही नहीं है क्योंकि हम पूरी रात दुआ करते हैं। याद रखिएगा, अगर आप सोएंगे नहीं खुदा आपसे कभी बात नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि खुदा का एक तरीका है कि खुदा ख्वाब और रोया में बात करता है, और जब आप सोएंगे नहीं, हाँ, तो आप ख्वाब में कैसे जाएंगे? मेरी बात समझ में आ रही? मैं चाह रहा हूं कि पहले आपकी बेस बने ताकि जो आज का सरमन है, जो आज का टॉपिक है, मैं वहां तक आपको लेके जा सकूं। कितने लोग तैयार हैं? तो वो कहते हैं हम जी पूरी रात दुआ करते हैं, और आप अगर सोएंगे नहीं तो खुदा आपसे बात नहीं कर सकता। तो इसलिए आपने प्रे भी करनी है और सोना भी है। उसके बाद आपने कभी भी ये दुआ नहीं करनी कि खुदावन मुझे ख्वाब आए, बल्कि आपने ये दुआ करनी कि खुदावन जो मुझे ख्वाब आए वो मुझे याद रहे। बहुत से लोग हैं कि जो रात को ख्वाब देखते सुबह उठते उनको याद नहीं रहता, कहते हैं ख्वाब देखा है मगर मुझे याद नहीं। ऐसे ही ना कई लोगों के साथ ऐसा होता है। और वो क्या होता है, शैतान आके चुरा लेता है और वो कड़वे बीज बो देता है, और आपको वो आकर उस मेमोरी को आपकी लाइफ से ले जाता है, वो अपना काम कर जाता है। जिसमें हमें बाइबल में मिलता है कि यीशु मसीह ने एक तमसील दी कि बोने वाला बीज बोने निकला, और क्या हुआ, दुश्मन आया और रात के वक्त कड़वे बीज भी बो गया। क्या हुआ, रात के वक्त दुश्मन आया और उसमें क्या किया, उसने कड़वे बीज बो दिए। यानी कि रात के वक्त क्या आता है, रात को क्या करता है नॉर्मल इंसान? हाँ, जो नॉर्मल वो बोल के बताया कि रात को इंसान नॉर्मल जो होते क्या करते हैं, सोते हैं। तो सोते वक्त दुश्मन आया और कड़वे बीज बो गया। तो इसी तरह दुश्मन आता है। दुश्मन कौन है आपका? शैतान है। हाँ, और वो आता है और वो गलत ख्वाब आके आपकी लाइफ के ऊपर वो आपके अंदर बो के चला जाता है। और वो क्या करता है, होशियारी ये करता है, ऊपर मिट्टी भी डाल देता है ताकि आपको ख्वाब ही याद ना रहे कि आपने देखा क्या था। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ। और एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे ख्वाब रोया में बात करे तो आप हमेशा रात को अपनी पर्सनल प्रेयर के बाद जब आप अपने बिस्तर पे जाएं तो लेट कर भी आप गैर जुबान में दुआ करते हुए सोएं। मैं आपसे 100% श्योर कहता हूं, आपके कान खुदा खोलेगा और आपकी रूहानी आंखें खोलेगा और आपको हेवनली ड्रीम्स आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हमारे चर्च में एक टेस्टिमनी है, मैं ये आगे बताना चाहता था मगर मैं इसको अभी साथ कोड इसलिए करूंगा ताकि आपको समझ में आए। हमारे चर्च में एक सिस्टर थी जिसकी ख्वाब में रात को सांप आता था बहुत बड़ा, और लोग कहते हैं जी बस ख्वाब ही सी। हाँ, ये तो ख्वाब ही है, मगर मैं आपको बताना ही चाहता हूँ दुश्मन आता है और वो कड़वे बीज बोता है। बाइबल में लिखा है खुदा ख्वाब और रोया में बात करता है। आमीन। अभी मैंने आपको अयूब में से बताया, अयूब की किताब में से, कि खुदा कैसे बात करता है। खुदा एक बार बात करता है बल्कि 2 बार बात करता है, ख्वाब और रोया में। तो दुश्मन जो है, अब्लीस जो है, वो हमेशा कॉपी करता है। क्या करता है? कॉपी करता है। तो वो भी क्या करता है, वो भी इसी तरह आके ख्वाब में ही आकर वो आकर अपना काम करता है और लोगों को लगता है ये ख्वाब है। और याद रखिएगा, हर ख्वाब, ये मेरी बात बड़े गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हर ख्वाब खुदा की तरफ से नहीं होता। लोग अक्सर उठकर, हाँ, उनको जब वो ख्वाब आता है और वो उससे सारा दिन मेडिटेशन करते रहते, बोलते रहे आज मैं आया ख्वाब च वेख्या, मैं आज आया ख्वाब च वेख्या, मैं ते, और कई लोग तो एडे नबी बन जाते कहते मैं तो पहली ख्वाब च वेख्या सी। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही?
ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਾ ਸੀ, मैं पहले ही ख्वाब च वेख्या फलाने ने मर जाना है, फलाने का इंज हो जाना है, फलाने का इंज हो जाना है। और उनको ये नहीं पता कि अगर शैतान ने आके तुम्हारी जिंदगी में ये बो दिया है तो आपने उसे उखाड़ना कैसे है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह का देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया। क्या किया है? क्या किया है? इख्तियार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छों को क्या करो? कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। अब वो तो आके अपना काम कर गया और आप सारा दिन उसे मेडिटेट कर रहे हो, मैं ख्वाब है वेख्या, मैं एक वेख्या। मैं जानता हूँ मेरे एक अजीज, मेरे बहुत क्लोज हैं, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंस होना था। और एक दिन पहले और कुछ दिन पहले उनकी वाइफ को भी ये ड्रीम आया और किसी और को भी आया। तो जब अगले 2 दिन के बाद ये हुआ तो कह रहे थे तो पहली ख्वाब के पता लग गया, तो पता लग गया है तो पता उखाड़ना चाहिए, क्योंकि यीशु ने आपको इख्तियार दिया है, क्योंकि दुश्मन तो अपना काम करके चला गया है। ये वक्त नहीं है, यीशु मसीह उस वक्त जमीन पर थे, यीशु ने कहा उगने दो, इनको वक्त पे काटा जाएगा, मगर अब यीशु मसीह आपको इख्तियार दे गया है, तुम इसे उखाड़ो। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, हालेलुया। और उसके बाद जो कुछ तुम जमीन पे बांधोगे वो आसमान पे बन जाएगा, और जो तुम जमीन पे खोलोगे वो आसमान पे खुल जाएगा। ये इख्तियार अब यीशु मसीह आपको दे के चला गया। मगर आज के लोग कहते हैं मैं खुदावंद ने मैनू आया गल की, और हर ख्वाब खुदा की ओर से नहीं होता। आपके ख्वाब की नोयत आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से पता चलती है कि आपकी जैसी रूहानी जिंदगी होगी आपके ख्वाब वैसे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही? सारा दिन जो बंदा मूवीज देखता है, गाने सुनता है, और वो अगर उठ के कहे कि मैनू ख्वाब आया है, खुदा ने मैनू क्या है, तो फिर ये तो हंसी वाली बात है ना। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद अगर मैं ख्वाब की बार बार बात करूं, ख्वाब ख्वाब ख्वाब, तो लोग कहेंगे ये तो पुराने अहदनामे की बात है, नए अहदनामे में क्या है। अगर हम देखें तो बाइबल में बहुत जगह हमें मिलता है कि लोगों ने ख्वाब देखा, जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया। दानियल का किया, सुलेमान का किया, यूसुफ का किया है, मुकद्दस यूसुफ का किया है, जो मुकद्दसा मरियम जो थी, यीशु मसीह की जो माँ थी, जो उसका शौहर था, उसने भी ख्वाब देखा। हालेलुया, हालेलुया। चले हम नए अहदनामे में देखते हैं, क्योंकि अगर मैं पुराने अहदनामे की बात करूं तो उसमें तो बहुत जगहों पे हमें ड्रीम्स के बारे में मिलता है। आइए नए अहदनामे में देखते हैं कि नया अहदनामा ड्रीम्स के बारे में क्या कहता है। मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील, उसका 1 बाब और उसकी 18वीं आयत। जब मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता ने आके कहा देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसने तो साफ इस बात का इकरार कर दिया कि खुदावंद ये क्यों कर हो सकता है, क्योंकि मैं तो किसी मर्द को जानती नहीं, मैं अनमैरिड हूं और मेरा किसी से कोई रिलेशन भी नहीं, हाँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती, तो ये क्यों कर होगा? तो फरिश्ता ने उसे कहा ये रूह कुदुस की कुदरत से होगा। अब मुकद्दसा मरियम ने कहा मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, उसने एक्सेप्ट किया, कंसीव किया, रिसीव किया। और उसके बाद क्या हुआ? यूसुफ अब परेशान, जब यूसुफ को पता चला कि जो मेरी मंगेतर है वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो रही है, और पुराने अहदनामे में ये होता था कि जब कोई औरत शादी से पहले प्रेग्नेंट होती थी उससे पता क्या किया जाता, उसे संसार किया जाता था, उसे फांसी नहीं दी जाती थी, उसका गला नहीं काटा जाता था, उसे शहर से बाहर लेकर जाकर और पूरे इलाके के लोग दूर खड़े होकर उसे पत्थर मारते थे, और पत्थर मार मार के इतना मारते थे कि वो मर जाता था। मेरी बात समझ में आ रही? ऐसी शर्मिंदगी, ऐसी तकलीफ, ऐसी पीड़ा वो लेना नहीं चाहता था, तो वो कहता है मैं चुपके से उसे छोड़ दूंगा। हाँ, तो वो अभी ये बातें सोच ही रहा था, तो वो सो गया, और सोते हुए क्या उसने देखा कि फरिश्ता जो मुकद्दसा मरियम के पास गया, उसको पास जाके कहता है यूसुफ अपनी बीवी को अपने हाल आने से क्या ना कर, तो अनुका ना जा रहे, फिर ऊंची बोलो, क्या ना कर, ना डर। और यहाँ ये देखो, वहां लिखा मंगनी हुई थी, मगर बाइबल के मुताबिक मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जो मंगनी है ना इक्वल टू निकाह है। आज लोगों ने मंगनी को तमाशा बनाया हुआ है, 3-3, 4-4 मंगनियां होती हैं। हाँ,
पहले इत्थे होई, इत्थों टुट गई होना उत्थे होई, उथों टुटी होना उत्थे होई। हाँ, मंगनी जो है लिखा मंगनी हुई थी, मगर फरिश्ता उसे क्या कह रहा है, अपनी बीवी को अपने हाँ लाने से ना डर। ये बाइबल की मैं टीचिंग बता रहा हूँ, मैं अपने पास से नहीं बता रहा, पढ़ लो, आपकी बाइबल में भी यही लिखा है कि फरिश्ता ने उसे क्या कहा, अपनी मंगेतर को या अपनी बीवी को। हाँ, उसने कहा अपनी बीवी को अपने हाँ लाने से ना डर। वो कहता चलो जी खा भी है, छड्डो परा। हाँ, मैं क्यों एडे मुसीबत च पवा। हाँ, आज के वो मंगेतर भी नहीं थे कि पैकेज से लगे ने। मेरी बात समझ में आ रही है? वो एक रियली स्पिरिचुअली लोग थे और खुदा ने मुकस्सा मरियम की पाकीज़गी के ऊपर नजर करके, ये नहीं लिखा था एक मरियम जो है ना वो हामला होगी, लिखा एक कुंवारी हामला होगी। और उसने अपने करैक्टर से, अपने चरित्र से, अपने किरदार से उस प्रोफेसी को अपने ऊपर खींचा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो उसने खींचा और उसने रिसीव किया। जब उसे कहा फरिश्ते ने, उसने कहा मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक हो। और जब यूसुफ इन चीजों को सोच ही रहा था, जब सो गया तो खुदा का फरिश्ता उसके पास आया और उसे ख्वाब में आके कहता है अपनी बीवी को अपने हाथ लाने से ना डर। और उसके बाद हमें दूसरे बाप में मिलता है, जो मजूसी आए थे, जब मजूसी आकर हेरोदिस से आके कहते हैं वो बादशाह कहाँ है, हमने उसे सजदा करना है। और वो डर गया, उसने कहा मेरा दुश्मन यानी कि मेरी बादशाह गई। उसने दिल में इरादा क्या किया, उसने कहा ठीक है तुम एक काम करो। उसने अपने बुलाया जसूसों को और लोगों को बुलाया और बुला कर दानिशमंदों को और गैबदीनों को बुला कर उसने कहा क्या पेशन गोई है। हाँ, उन्होंने कहा कि वो कहाँ पैदा होगा, बैतलहम में। उन्होंने कहा अच्छा। उसने कहा तुम जाओ और जब तुम्हें बच्चे का पता चल जाए तो ठीक ठीक मुझे भी बताना ताकि मैं भी आंखों से सजदा करूं। मगर उसके दिल के अंदर इरादा कुछ और था। हाँ, और क्या हुआ, मजूसी जब वहां गए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हाँ, उन्होंने यीशु मसीह का पता लग गया, चलो जी 24 दिन आते लाओ बुआ के टैग। हाँ, लाओ अपने बुआ के क्रिसमस ट्री ताकि पता लगे क्रिसमस शुरू हो गया। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। उन्होंने जाकर अपने अपने डिब्बे उसके आगे रखे और सजदा करके, हाँ, सजदा किया। और बादशाह थे वो कौन थे, मजूसी तो वो कौन थे, वो बादशाह थे। और वो बादशाह ने आकर यीशु मसीह को सजदा किया। और उसके बाद उन्होंने ख्वाब में, जी मेरे साथ पढ़े, दूसरे बाप की 12वीं आयत। और हेरोदेस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर 11वीं आयत से पढ़ो। और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा, बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा उसके आगे क्या किया, क्या किया, नहीं दोबारा बोलो, क्या किया, गिर कर सजदा किया। हमारे लोगों ने सिर्फ गिरना पकड़ा हुआ है, वो 24 कभी इधर डिग रहे होंगे तो कभी इधर डिग रहे होंगे, ऐसे ही ना। उन्होंने गिर कर यीशु मसीह को सजदा किया और आगे और अपने डब्बे खोलकर सोना, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुल उसको नजर किया, उसे नजर किया। और हेरोदिस के पास फिर न जाने, और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में हदायत कहाँ पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हो गए। अब ये देखो, मजूसियों को पहले सितारा उनकी रहनुमाई कर रहा है, मगर अब सितारा नहीं बल्कि ख्वाब में खुदा ने उनसे कहा कि तुम हेरोदिस के पास न जाना बल्कि दूसरा रास्ता लेके अपने मुल्क को चले जाओ, क्योंकि जो तुम्हारा काम था तुमने कर दिया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? ख्वाब यानी कि नए अहदनामे में भी मायने रखते हैं। हाँ, मैं आपको समझाना है चारों, अगर मैं पुराने अहदनामे का बताता रहता तो पुराना अहदनामा भरा पड़ा है ख्वाबों से। हाँ, ख्वाबों को कभी तामीर किया जा रहा है, कभी उनको ट्रांसलेट किया जा रहा है, कभी ख्वाब को ख्वाब बताया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आप बहुत दफा सुन चुके हो। आज हम तस्वीर का दूसरा देखते हैं कि नया अहदनामा उसके बारे में क्या कहता है। हमें मिलता है कि ये नया अहदनामा यीशु मसीह की पैदाइश से शुरू होता है और वहां से ही ख्वाबों की, वहां से भी स्टोरी मिलती है कि यूसुफ को भी ख्वाब आया कि अपनी बीवी को अपने हाथ लाने से ना डर। और उसके बाद क्या हुआ, मजूसियों को भी ख्वाब आया और तीसरे नंबर पे फिर यूसुफ को ख्वाब आया कि अपने बेटे को ले और मिस्र को चला जा। इसको मेरे साथ निकालिए, मत्ती के इंजील उसका दूसरा बाब
اور اس کی 19 اور 20 آیت. जब हेरोदेस मर गया जब हेरोदिस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ता तो देखो खुदा के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को मिस्र में कहा, ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ इस बच्चे उठ इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इजराइल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाब जो बच्चे की जान के ख्वाब थे वो मर गए. आमीन. अब क्या हुआ, यूसुफ को दूसरी बार ख्वाब आया और ख्वाब आकर क्या हुआ, उसे बताया जा रहा है कि तूने किस जगह से किस जगह जाना है. मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैंने आपको शुरू में कहा कि जो ख्वाब हैं खुदा आपसे आपको पैगाम देता है और किसी खास जगह के बारे में भी बताता है. हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत से मैन ऑफ गॉड हैं, हम बहुत कम चंद मैन ऑफ गॉड को सुनते हैं, मगर जिनको सुनते हैं, हाँ, मेरे साथ एक मैन ऑफ गॉड का बहुत गहरा रिश्ता है, वो इस कंट्री के नहीं है, और वो कहते हैं मैन ऑफ गॉड आपके मुल्क से जो है ना एक चीज़ बड़ी सुनने को मिलती है कि मैंने ख्वाब च खुदा ने है क्या है, मैंने खुदा ने है क्या है. मैं कहा दरअसल साडा मुल्क भी ख्वाब च बनिया थी. हालेलुया. मैंने कहा हमारे मुल्क का भी ख्वाब ही देखा गया था पहले, इसलिए ये इनके ऊपर ग्रेस है, ये ख्वाब बड़े देखते हैं. हाँ, तो मैं आपको बताने ये चाहता हूँ हर ख्वाब खुदा की ओर से नहीं होता. मेरी बात समझ में आ रही है? हर आवाज खुदा की आवाज नहीं होती और हर ख्वाब खुदा की तरफ से नहीं होता. ये आज अपने पल्ले से बांध लो. हालेलुया. हाँ, कि हर ख्वाब खुदा की तरफ से नहीं होता और हर आवाज खुदा की नहीं होती. आज कई लोग कई आवाजों को सुनकर किधर से किधर निकल गए. अगर मजूसियों को खुदा ने कहा था, हाँ, कि तुम हेरोदिस के पास ना जाना, वो कहते हैं तो कमिटमेंट करके आए हैं, असी छठो पर इस बात नू जाते हैं हेरोदिस के पास, तो क्या होता, यीशु मसीह को बचपन में ही मरवा दिया जाता. मेरी बात समझ में आ रही? खुदा का जो प्लान था उसके अंदर शैतान गड़बड़ी डाल देता. उसके बाद जो आपकी नींद है, एक क्रिश्चियन की जो नींद है वो सिर्फ सोने के लिए नहीं बल्कि खुदा से कम्युनिकेशन करने का जो नाम है. हालेलुया. हालेलुया. जो आपकी नींद है ना जी तो बहुत ज्यादा आंधी है, हाँ, वो आपके सिर्फ सोने के लिए नहीं है, वो खुदा से बहुत कुछ लेने का है. याकूब का हमें मिलता है, याकूब ने ख्वाब देखा. हाँ, वो जिस पत्थर के ऊपर सर टिका के सो रहा था, उसने ख्वाब में देखा कि इस जगह के ऊपर सीढ़ी लगी है जिसका सिरा आसमान तक फरिश्ते उतर रहे चढ़ रहे. उन्होंने तो चाहिए कि पर जो तो बस वो उठा और उसने क्या किया, वहां जो पत्थर सराने रखा था उसे रखकर उसके ऊपर तेल उंडेला और उसने कहा आज से इस जगह का नाम क्या है, बैतेल है. हालेलुया. हालेलुया. और जब खुदा उस पे कई साल बाद जाहिर हुआ तो उसे कहता है मैं बैतेल का खुदा हूँ. हालेलुया. जहां तूने ख्वाब देखा था मैं उस जगह का खुदा हूँ. तो लोग ख्वाबों को आज लोगों ने एक अजीब ही नमूना बनाया हुआ है और लेकर वो पोटली, हाँ, शायद किसी ने समझ ना आए, पंड सिर ते चौके फिरन रहे, उन्होंने पता ही नहीं कैसी किनिया मुसीबत लैके फिरन रहे, और लोग कहते हैं खा भी दिया है छोड़ो पर. हाँ, और हमें दानियल का मिलता है कि दानियल को जब बुलाया गया कि बादशाह के ख्वाब की ताबीर कर, उसने क्या किया, क्या किया उसने, कोई बताएगा मुझे? उसने जाकर उसने कहा ठीक है मैं खुदा क्या के दुआ करूंगा, और 3 दिन उसने उससे बादशाह से मांगे. 3 दिन बाद खुदा ने ख्वाब में उसे बताया ख्वाब के बारे में. आज हर दूजा बंदा दानियल बनया होंदा है और जिन्हों ख्वाब आया होंदा वो दस रहा होंदा है मैं आज यह ख्वाब देखिया दा की मतलब है, तो हर बंदे दानियल बनया फिरदा. दानियल नहीं बल्कि उत्ते वे उस टाइम ही वो ख्वाब की ताबीर दस रहा होंदा है, तेरे ख्वाब का मतलब है ही, हाँ, तेरे ख्वाब का मतलब है ही. मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, तो लिखा है दानियल के ऊपर जो ना खुदा की रूह थी. हालेलुया. जो ख्वाबों की ताबीर होती ना. और ये आपको एक और बात बताऊं, योएल नबी की मार्फत लिखा गया था, खुदा कहता है मैं आखिर ज़माने में अपना रूह हर एक बशर पे उंडेलूंगा, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे. हालेलुया. ये खुदा का वादा है जो पतरस ने क्लेम किया
اور وہ वचन उनकी जिंदगियों में पूरा हुआ और आज इस कलीसिया में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यहाँ ये आज योएल नबी की मार्फत जो लिखा गया था ना, आज इस कलीसिया के अंदर पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। हालेलुया। आज से आप ख्वाब और रोया देखने वाले बन जाएंगे। आपसे खुदा कम्युनिकेशन क्या करेगा आपकी नींद में। जिस तरह शैतान ने इसे कॉपी किया हुआ है, वो आकर आपकी जिंदगियों के अंदर बहुत कुछ कड़वा बो के जाता है ना, आज वो सूख जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो उखड़ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आपको पता है ख्वाब के अंदर सोते वक्त, रात के वक्त बहुत कुछ तब्दील भी हो जाता है। हमें एक वाकया मिलता है बाइबल मुकद्दस में कि दो औरतें थी और उनका एक का बच्चा मर गया और उसने क्या किया, सोती हुई औरत के पास गई और अपना बेटा क्या किया, उसके साथ जो मर गया था उसे लेकर उसका जिंदा बच्चा उठा लिया। जब आप सोते हो ना तो बहुत कुछ तब्दील भी हो जाता है। ये याद रखिएगा, जब आपने सोना है ना तो रूहानी तौर पे नहीं सोना, जिस्मानी तौर पर से सोना है। आपकी स्पिरिट एक्टिवेट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि शैतान मुझसे क्या ले रहा है और मुझे क्या दे रहा है। बहुत से लोग हैं, चलो ख्वाब ही है ना, हाँ, और उसे बल्कि लोगों को बता रहे होते। और आप जब अपने ख्वाब को ज्यादा लोगों से डिस्कस करते हो, आप शेयर करते हो, आप उसे बार बार मेडिटेशन करते हो, आप उसे पानी देते हो ताकि आप पौधा जल्दी बढ़ा है। कभी भी आपको ख्वाब आए, उस ख्वाब को सबसे पहले उठो, समझो, और अगर सही नहीं अपना दाहिना हाथ उठाओ और कहो खुदा मैं इख्तियार लेता हूँ, आज इसे मैं उखड़ने हुक्म देता हूँ। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के जितने माफिक भी ईमान होगा तो तुम क्या करोगे, पहाड़ों को कहोगे तो वो हट जाएंगे। तो सोचो, ये शैतान ने छोटा सा बीज बोया है, आप उखाड़ नहीं सकते। हालेलुया। हाँ, तो आप क्या करो, आप लो इख्तियार और उसे उखाड़ो, कैंसिल करो। शैतान के हर एक वेदी को गिराओ अपनी जिंदगी से, अपने खानदान से। एवरी डे, मैं एवरी डे सुबह उठ के, पास्टर सोनिया भी ऐसी करती, मैं एवरी डे सुबह उठकर ये प्रे करता हूँ कि खुदावन जो कुछ शैतान मेरे बच्चों की लाइफ में, मेरी लाइफ में, हाँ, मेरे खानदान में बो के गया, मैं उसे उखाड़ता हूँ। क्योंकि हमें पता है ड्रीम्स क्या करते हैं, रात को सोते वक्त बहुत कुछ तब्दील हो जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपसे कुछ जिंदा चीज लेकर मुर्दा आपको ना दी जाए तो आपको सोना भी अलर्ट हो के। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हर ड्रीम जो है वो खुदा की तरफ से नहीं होता। बाइबल हमें बताती है जो अलीशा था, खुदा उसके दुश्मनों का उसको ख्वाब में रात को बता दिया देता था कि तेरे दुश्मन तेरे लिए क्या प्लान कर रहे हैं। कैसी बात है ये, हाँ, कि उसके दुश्मन उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। खुदा अलीशा को रात को क्या करते हैं, क्या करते हैं चर्च? सो तो नहीं गए, क्या करते हैं? सोना है मगर घर पे सोना है। सब बोलो रात को नॉर्मल लोग सोते हैं। अलीशा भी सोता था और खुदा उसे ख्वाब रोया में बताता था तेरा दुश्मन तेरे लिए क्या कर रहा है। आज ये अलीशा वाली ग्रेस एक एक जिंदगी के ऊपर आ रही है। आपके विरोधी, आपके दुश्मन जो आपके लिए प्लान बना रहे होंगे, खुदा आप पर जाहिर करेगा, आप उन्हें कैंसिल कर पाएंगे, आप उनके लिए खड़े हो पाएंगे, आप उनके लिए एक्शन कर ले पाएंगे। आमीन। जिनका ईमान है वो ऊंची बोले आमीन। अक्सर लोग कहते हैं पास्टर जी हमें गलत ख्वाब आते हैं, और मैं आपको बताने ही चाहता हूँ वो सिर्फ ख्वाब नहीं होते, मैं सीरियस कह रहा हूँ। लोग अक्सर कहते हैं हम ख्वाब हम देखते हैं, हमारे ख्वाबों में गलत हमारे साथ होता है, और वो ख्वाब नहीं होते, शैतान रियल में करता है वो। हमारे इलाके में एक बच्ची का, जब हमने यहाँ 2-3 साल पहले यहाँ बड़ी मीटिंग की थी तो एक मैन ऑफ गॉड आए और वो पहली दफ़ा कराची में आए थे, और इस इलाके के अंदर कौन है, कहाँ है, कैसे है, कुछ उसे पता नहीं। उसे ये भी नहीं पता था इस इलाके के अंदर जो है ना गलियाँ कितनी है। और वो सुबह उठ के कहते हैं मुझे खुदा ने कहा कि इस इलाके के अंदर एक बच्ची है जिसकी चंद दिनों के बाद शादी है, हाँ, और उस बच्ची की ख्वाब में शैतान आता है उसकी माँ के रूप में और उसे बाइट करता है, काटता है, और सुबह जब वो उठती है ना तो उसकी बॉडी पे निशान होते हैं। और सेम टू सेम जब उस बच्ची के हमें तो पता था ना कि इलाके के अंदर किसकी शादी, उसने हुलिया बताया, उनके घर का एड्रेस बताया। सोचो कैसी बात है, हाँ। जैसे मैंने अपनी टीम के एक मेंबर को भेजा उस बच्ची को जाके, जैसे इसने लड़के ने कहा
وہ لڑکی پتہ نہیں کرسمس والے دن چرچ جاندی ہی نہیں سی جاندی، اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے، مگر اپنی منگنی والے دنوں سے ترلے گا رہے کاکا آیا سے منگنی کریں، وہ کہتی ٹھہر جاؤ مینوں پہلا دعا کروا لے دو کیونکہ مینوں پتہ ہے میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ ہاں اس کی ماں کے روپ میں شیطان آتا تھا اور اسے بائٹ کرتا تھا اور کہتا تھا شادی نہ کر، اور یہ ہمارے علاقے کی گواہی ہے، اس کا ثبوت ہے۔ آج بھی چلو اس کا باپ کہے گا، وہ بچی کہے گی ہاں بالکل میرے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ ایسی میں آپ کو جو یہ باتیں کہہ رہے ہو نا، ایسی ہوائی باتیں نہیں میں کر رہا، شیطان بہت کچھ جو آپ کے ڈریم میں آپ کے ساتھ کرتا ہے وہ ریل میں ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری باڈی کے اوپر نشان ہے، کہاں سے آگے نشان؟ کون سی ایسی کبڈی کھیلی تھی آپ نے سوتے ہوئے جو آپ کی صبح سوتے سوتے نشان آ گئے؟ شیطان بو کر گیا ہے بہت کچھ، اور آپ کو لگ رہا ہے خواب ہے۔ اگر یوسف بھی کہتا خواب ہے، خدا اسے کہہ رہا ہے کہ جا لڑکے کو لے، اس کی ماں کو لے اور مصر کو چلا، وہ کہتا ہے چھڈو پرا خواب ہے، یسوع مسیح کو بچپن میں ہی مار دیتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا آج کے بعد آپ اپنے کسی بھی خواب کو عام نہیں لینا، بلکہ ایک میسج سمجھنا، اور یہ آپ کے اوپر ہے، آپ سمجھیں یہ خدا کی طرف سے میسج ہے یا شیطان کی طرف سے۔ جب موسیٰ گیا تو موسیٰ نے جب فرعون کے سامنے جا کر کیا کیا؟ اس نے اپنی چھڑی پھینکی، جو خدا نے اس سے کہا تو جانا، ہاں تو اپنی چھڑی پھینکنا وہ سانپ بن جائے گی۔ تو اس نے شیطان نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اپنی چھڑیاں پھینکی، ان کے بھی سانپ بن گئے۔ مگر خدا ہمارا جیوت اور زندہ خدا ہے۔ موسیٰ کے سانپ نے کیا کیا؟ ہاں، ان کے جو سانپ تھے وہ موسیٰ کا سانپ کھا گیا۔ اور آج خدا آپ کے اندر جہاں جہاں شیطان نے نیگیٹو طریقے سے کاپی کر کے آپ کے اندر بویا نا، آج خدا کا روٹ کو اکھاڑے گا، جلائے گا اپنی آگ سے یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین آمین۔ تو کیا ہوا؟ شیطان نے کاپی کی اور کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ سانپ کی شکل لے لی، مگر موسیٰ کا جو سانپ تھا، جو خدا نے اتھارٹی دی تھی، جو اوریجنل تھا، وہ کاپی کو کھا گیا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو آپ یاد رکھیے گا، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو جو خواب آیا ہے آپ اسے ریسیو کرتے ہو یا آپ اسے ڈانٹتے ہو، یہ آپ کے اوپر ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاں، اور اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں، آپ کو جب بھی خواب آئے سب سے پہلے آپ نے اس کے بارے میں پرے کرنی ہے کہ خداوند اگر یہ تیری اور سے نا، مجھے اس کی کنفرمیشن دے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کہ جو بھی خواب آپ کو آیا ہے، آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ خواب خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ آپ خدا سے جداؤن کی طرح سائن مانگو، خداوند سے کہو خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے تو ایک بار بات کرتا ہے بلکہ 2 بار بات کرتا ہے، مجھ سے بات کر دوبارہ، اور خدا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اچھا، بہت سے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں فلان جگہ پہ گئی، میں فلان جگہ پہ گیا اور میں نے کچھ کھایا، اور خواب میں نے کچھ کھایا مگر ریل میں میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے نا؟ ہاں، اور اگر نہیں ہوتا آپ نے سنا ضرور ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ میں فلان جگہ گئی، میں وہاں سے میں نے خواب میں کھایا اور صبح میں اٹھا تو میری طبیعت خراب تھی۔ اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ نے شیطان کے آلٹر سے شیطان نے آپ کو کھلایا ہے، اب آپ کے اوپر ہے آپ اسے ہضم کریں یا آپ اسے اگلیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسی لیے جب آپ خواب دیکھیں تو آپ کو دیکھنا یہ کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو اور کیا ریسیو کر رہے ہو اور کیا کنسیو کر رہے ہو، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ جب تک 2 لوگ زمین پہ متفق نہ ہوں، ہاں، تو آسمان پہ کام نہیں ہوتا۔ جب آپ یا تو خدا کے ساتھ متفق ہوں گے یا شیطان کے ساتھ ہوں گے۔ اگر خدا کے ساتھ ہوں گے خدا اسے اکھاڑ دے گا، اگر شیطان کے ساتھ ہوں گے وہ آپ کی زندگی میں تناور درخت بن جائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی لیے آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے، آپ کو جو خواب آئے آپ نے اس کا ٹنڈورا نہیں پیٹنا کہ میں اے ویکھیا، میں اے ویکھیا، میں انج ویکھیا، میں اے کھادا۔ آپ لو اختیار اور اسے کینسل کرو، بولو میں اختیار لیتی ہوں کیونکہ یسوع مسیح نے مجھے اختیار دیا ہے، میں کینسل کرتی ہوں ہر ایک چیز سے۔ ہاں، آپ یاد رکھیں، آپ جب اپنے خوابوں کو آپ خود لے کر پرے کرنا شروع کر دو گے، آپ کو کسی ضرورت نہیں کسی کی، کیا وہ آپ کی ہیلپ کرے، آپ خود اپنے ہیلپر ہو اور آپ کا مددگار روح القدس کو خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں کیونکہ مددگار آپ کے ساتھ ہے۔ آپ خدا سے کہے خدا میری مدد کر، مجھے سمجھا تاکہ میں اسے سمجھ سکوں۔ آمین۔ بائبل ہمیں بتا دے کہ جب تک لوگ کسی بات پر متفق نہیں نہ ہوتے وہ چل نہیں سکتے۔ ہاں،
जब तक दो लोग किसी बात में मुत्तफिक नहीं, वो चल सकते हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं, वो जा सकते हैं कहीं। हाँ, एक कहे मैंने सदर जाना है और दूसरा कहे मुझे मलीर जाना है, तो वो कभी भी नहीं कहीं पहुंचेंगे। ऐसे ही ना, इसी तरह आप जब तक शैतान के साथ मुत्तफिक नहीं होंगे कि वो आपकी ज़िंदगी में इम्पार्ट करके चला गया है, आप कह रहे हो मैंने तो पहले ही ख्वाब आया थी। हाँ, और शैतान ने अगर आपको कुछ दे दिया है गलत और आप कह रहे हो ख्वाब आया है, हाँ, तो बाद में आप कहते हो ऐसे ख्वाब से मैं पहले ही विख्या, यानी कि आप मुत्तफिक हो गए, आपने उसे ले लिया, आपने उसे लिया, फिर उसका रिजल्ट आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? खुदा भी चाहता है कि आप उसके साथ मुत्तफिक हो, क्योंकि बाइबल ये कहती है खुदा ख्वाब और रोया में बात करता है और शैतान हमेशा कॉपी करता है, और वो भी ख्वाब और रोया में ही बात करता है। और बहुत से लोग उस चीज़ को गलत लेकर फिर वो पकड़ के बैठ जाते हैं कि शायद ये खुदा लो ही। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी आप ख्वाब देखें, आप कभी भी लोगों के साथ उसे शेयर ना करें और बार बार अपने मुंह से उसे रिपीट ना करें। आप जितना ज़्यादा उसे रिपीट करेंगे, जितना ज़्यादा उस ख्वाब के बारे में बात करेंगे, वो उतना गहरा आपकी लाइफ के अंदर असर करेगा। इसलिए जब भी ख्वाब देखें, मेडिटेशन ज़रूर करें और उसके बाद खुदावंद से कंफर्मेशन ले और उसे कैंसिल करें, अपनी अथॉरिटी को, अपने इख्तियार को लेकर उसे अपनी ज़िंदगी से रद्द करें। आमीन। चर्च, नींद तो नहीं आ रही? हाँ, मेरा तो ईमान है कि आज आपकी आंखें खुलेंगी नहीं बल्कि बंद नहीं होंगी। हालेलुया। आज के बाद आप अपने ख्वाबों को आम नहीं लेंगे, आप खास लेंगे। और आप जब सोएंगे तो आप सिर्फ सोने के लिए, नींद पूरी करने के लिए नहीं सोएंगे, बल्कि इसलिए सोएंगे कि खुदा मुझसे बात कर, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू ख्वाब और रोया में बात करता है। खुदा मुझसे बात कर, और मेरी दुआ है खुदावंद कि तू आज जब मुझसे बात करे तो मैं ख्वाब भूलूं नहीं, शैतान से चुरा ना सके। आमीन। इसलिए आज के बाद ड्रीम्स क्या करने हैं? देखने हैं। कौन से देखने हैं? हेवनली देखने हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं आज आपकी लाइफ के ऊपर मैं सीरियस कह रहा हूँ, गॉडली ड्रीम की ग्रेस को मैं डिक्लेयर करता हूँ। आज के बाद आपको डेविल की तरफ से, शैतान की तरफ से कोई ख्वाब ना आ सकेगा यीशु मसीह के नाम से। और जिस तरह दाऊद कहता है खुदावंद मेरे ख्वाबों की छानबीन कर, आज खुदावंद ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा करे और खुदा के फरिश्ते आपके ख्वाबों की छानबीन करें और शैतान के रास्ते को रोके, ताकि शैतान आके को कड़वा बीज ना बोल सके यीशु मसीह के नाम से। और जिस तरह अयूब साबिर के चिकिर्द उसके पाक फरिश्तों के बाहर थी, शैतान उसके पास आ नहीं सकता था, आज मैं यीशु मसीह के लहू की बाड़ा के नीचे आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को देता हूँ, ताकि शैतान कोई कड़वा बीज आके बो ना सके यीशु मसीह के नाम से। मैं कहता हूँ बो ना सके यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करो यीशु के नाम से, रिसीव करो यीशु के नाम से, रिसीव करो यीशु के नाम से। रिसीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आप लोग ब्लेस हो चर्च, जोर से तालियां बजाओ, जोर से। और आज के बाद आपको गॉडली ड्रीम आएंगे यूसुफ की तरह। आप अपने आप को बढ़ता ही देखोगे, कम होता नहीं देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और अगर आपको कोई आके कहे ना कि मैंने आपके लिए ख्वाब देखा है, तो आपको पता चल गया अब आपने करना क्या है। आमीन। हाँ, ज़्यादातर जब लोगों को कहा जाता है वो डर जाते हैं, डरने का नहीं है। बाइबल में क्या, डरो मत। हाँ, डरने नहीं, आपने इख्तियार लेना है जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। आप उठो और इख्तियार को लेकर फाइट करो। बाइबल में क्या, प्लीज का मुकाबला करो, तब वो तुमसे भाग जाएगा। जब मुकाबला करोगे तो वो भागेगा ना। और आज भागने का दिन है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो।